Hello everyone. Last time we have completed our first unit, and as you know, that unit consists of two chapters: perfect competition and monopoly. If you understood those two chapters nicely, then monopolistic competition is actually a mixture of these two market structure, that is perfect competition and monopoly. Meaning wise, the simplest meaning of monopolistic competition is it is a concept of blending of both perfect competition and monopoly. Means in monopolistic competition we have certain characteristics of monopoly as well as perfect competition, right? uh, the most widely acceptable definition of monopolistic competition is it is a market structure where a entrepreneur or a seller or any business firm is enjoying monopoly power of his own variety of product, and at the same time facing competition with other close substitute products available in the market, right? So on one hand monopoly, in other hand competition. That's why this market structure is known as monopolistic competition, right? There are lots of examples of monopolistic competition, monopolistic competitive market, right, in real life, because this is a most realistic market structure. you know Thousands lakhs of products or markets we have of this type, right, in real market or over the world. For example, if we take some examples of bath soaps, right, we have monopolistic competition in that. Hair shampoo, right, we have monopolistic competition. Detergent powder, right, we have monopolistic competition. Toothpaste, lots of we have, right, monopolist, which is an example of monopolistic competition. Chocolates, right, are again example of monopolistic competition, right? Question arise, how to get idea that so and so market is monopolistic market or not. For that, you know first topmost feature to bifurcate any market, right, or to find out certain kind of market from the economy, right, the first topmost feature is number of sailors. By number of sailors, we can get idea or we can bifurcate market. Okay, which kind of market is this? It is a perfect competitive market or monopoly market or monopolistic market or oligopoly or any other, right? So by number of firms, right, you can get idea. If only one firm is there in the market who is selling product, then it is monopoly. If there are two firms, that is more than one firm, right, but only two, then it is duopoly market. More than two but less than many, and to be very precise, if the firms are between 2 to 10, then it is known as oligopoly market, right? And if more than 10 but not huge, right, like unlimited or perfect competition, then it is known as monopolistic market, right? So आपको अगर मार्केट में ढूंढना है कि ये कौन सा मार्केट है, कौन सा कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर है, तो अगर आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दैट इज़ द अनदर नेम इज़ इम्परफेक्ट कंपटीशन, वो अगर ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोर देन 10 सेलर्स ऑफ सो एंड सो प्रोडक्ट बट नॉट अनलिमिटेड, राइट, उसको हम बोलेंगे मैनी फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. तो अगर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है तो उसको बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो दिस इज़ अ फर्स्ट फीचर of monopolistic competition, that is existence of many firms. Many है, right, that is large number, मतलब less than huge, less than unlimited, but more than 10. तो अगर आप बाथ सोप ले लो, शैम्पू ले लो, डिटर्जेंट पाउडर ले लो, टूथपेस्ट ले लो, चॉकलेट ले लो, इवन एनी फूड आइटम्स, राइट, लाइक नूडल्स,
तो इतने सारे कंपनीज हैं नूडल्स बेचने वाले, पास्तास, राइट। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट ले लो जिसमें आपको मोर देन 10 सेलर्स मिल जाए, राइट, नॉट अनलिमिटेड एटलीस्ट, राइट, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इतने नंबर होने चाहिए, पर बहुत ज़्यादा होने चाहिए और कम से कम मोर देन 10 होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, राइट। एक्चुअली दिस फीचर्स मीनिंग एवरीथिंग इज रिपीटेशन because in F5 we have already discussed this, right. Second feature is easy entry and exit, that is free entry and exit, right. Free entry and exit is itself indicates that whoever want to enter in the market or want to start business in the monopolistic competitive market, they can, right. Or whenever business firm wants to leave the market, right, they can, okay. So ultimately in monopolistic competition, entry and exit of the firm depends on profit or loss, right. जब भी प्रॉफिट होगा एंटरप्रेन्योर मार्केट में आएंगे नए नए, और जब भी लगेगा कि ये बिज़नेस में लॉस है तो वो मार्केट को छोड़ भी सकते हैं. Then the very special property of monopolistic competition is selling cost. Selling cost is a cost which incurred to increase sale. It is not a production cost, right? It is a cost which incurred to increase demand, to increase sale, right? तो डिमांड बढ़ाने के लिए या सेल बढ़ाने के लिए जो खर्च करती है कंपनियां, उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट. सो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट is the biggest example I can say. Publicity cost, right, is the selling cost. और monopolistic competition में selling cost दिखने को मिलता है जो perfect competition या monopoly में नहीं था. उसका reason है कि perfect competition में products were homogeneous, so there is no need to attract buyers because there is a perfect knowledge also. Every buyer knows about the fact that all the products are homogeneous. So there is no need of advertising because advertising is for a purpose, right? For a certain purpose. When firm wants to establish certain thing like our product is better than other, or we are selling certain superior qualitative product. That kind of for that kind of establishment, right, advertising is needed. पर यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में तो होमोजीनियस प्रोडक्ट था तो ये ज़रूरत नहीं थी. इन मोनोपोली ऑल्सो देर वॉज ओनली वन सेलर एंड नो क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल, तो देर इज़ नो नीड टू स्पेंड मच रिसोर्सेज फॉर एडवर्टाइजिंग, क्योंकि उससे कॉस्ट बढ़ेगा, राइट, एडवर्टाइजिंग से, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो बंदा अकेला है हु कैन सेल हिज एंटायर प्रोडक्शन, राइट, वेरी इजीली बिकॉज नंबर ऑफ बायर्स आर मोर देन द सेलर, राइट. तो वहाँ भी ज़रूरत नहीं थी. पर यहाँ इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बिकॉज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इज़ देयर बिटवीन मैनी सेलर्स, राइट, एंड दे आर सेलिंग वेरी क्लोज सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स, राइट. जैसे मैंने बोला शैम्पू है, चॉकलेट है, वॉशिंग पाउडर है, तो वो कट टू कट प्रोडक्ट है, वेरी क्लोज सब्सिट्यूट्स टू ईच अदर, राइट. तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आवर प्रोडक्ट इज़ बेटर देन अदर, राइट. इसलिए पब्लिसिटी इज़ रिक्वायर्ड. सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. उसके बाद है फोर्थ फीचर, राइट, दैट इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन. जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में आपको मैंने बोला था, होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स कलर, स्मेल, टेस्ट, साइज, पैकिंग, राइट, एट्सेट्रा विल बी सेम. Okay, that is called identical homogeneous product. But here in monopolistic competition, because lots of
sailors are selling cut to cut product, that is close substitute products, right? So here product is not homogeneous, right? Color wise, smell wise, taste wise, size wise, packing wise, everything is different. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टूथपेस्ट ले ले, राइट, तो देखिए टूथपेस्ट में आपको मिलेगा अलग कलर, अलग टाइप का पैकिंग, राइट, अलग टाइप की स्मेल, अलग टाइप का टेस्ट, ओके। तो ये सारी चीज़ें शैम्पू में भी देखो, उसमें भी आपको अलग अलग मिलेंगे, राइट। कोई पिंक कलर का होगा, कोई वाइट का होगा, राइट। किसी की साइज़, पैकिंग में, बॉटल में फ़र्क आएगा, राइट। किसी की स्मेल कुछ होगी, कोई स्मेल बहुत अच्छी, कोई ओके। और ऊपर से शैम्पू में क्वालिटी वाइज भी एलिमेंट थोड़े डिफरेंट कंपनीज बताती है, जैसे स्मूदनिंग शैम्पू विथ स्मूदनिंग द हेयर और एंटी डैंड्रफ शैम्पू, राइट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं विच इज़ नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देन इम्परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि दिस मार्केट इज़ नॉट परफेक्ट मार्केट, राइट। तो नॉलेज भी परफेक्ट नहीं है, नॉलेज इम्परफेक्ट है, मतलब फ्रॉम बायर एंड सेलर साइड देयर इज़ नो परफेक्ट नॉलेज, राइट। जैसे बायर के साइड से नॉलेज का मतलब क्या है, हाउ मैनी सेलर्स आर सेलिंग प्रोडक्ट, एट विच प्राइस दे आर सेलिंग प्रोडक्ट, राइट, विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे आर सेलिंग, इज़ इट गुड और बैड, राइट। तो ये सारी बायर की नॉलेज है। और सेलर की नॉलेज है व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड इन द मार्केट, राइट, एट विच प्राइस बायर्स आर रेडी टू बाय प्रोडक्ट, राइट, डिस्काउंट स्कीम विल बी रियली हेल्पफुल और नॉट, राइट, what is the degree of competition in the market, मतलब how many rivals are there in the market, right, to whom you have to fight as a business firm। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज है, पर ये सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट नहीं है यहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन में, और इसीलिए उसको इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, राइट। क्योंकि हो सकता है आपको पता हो कि शैम्पू वाले 10 सेलर है, 10 शैम्पू बेचने वाले 10 सेलर है, और आप जब मार्केट में जाओ तो कोई नया ही इंट्रोड्यूस हो गया हो और कोई नया सेलर दिखने को मिल जाए, तो इसको बोलते हैं आपका नॉलेज परफेक्ट नहीं है। ऐसे ही कोई शैम्पू एंटी डैंड्रफ समझ के आप ले आए और हेयर वॉश करने के बाद पता चला कि ये तो कुछ खास नहीं है, राइट, डैंड्रफ नहीं गया, तो इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट नॉलेज। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को इम्परफेक्ट बनाती है। उसके बाद है इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट होमोजीनियस था तो ट्रांसफ़र इज़ वेरी इजी। मोनोपोली में ट्रांसफ़र ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पर यहाँ बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, क्लोज सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स, राइट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो वहाँ पर very easily you can't transfer any factors of production from one to other, right। डिटर्जेंट प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स को आप बिना ट्रेनिंग के शैम्पू में नहीं डाल सकते, ओके। सो दैट्स वाई मोबिलिटी इज़ इम्परफेक्ट। उसके बाद जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। उसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि मैंने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली दोनों में आपको ये समझाया है, तो मीनिंग भी वही का वही है। एवरेज रेवेन्यू इज़ पर यूनिट सेल्स रेवेन्यू, उसको ढूंढने के लिए इक्वेशन भी यही सेम है, AR इज़ इक्वल टू TR अपॉन Q। ऐसे ही मार्जिनल जो है इज़ एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू कॉज बाय सेलिंग वन मोर, वही मीनिंग है, वही एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इक्वेशन भी वही है, राइट। तो उसमें जो रिलेशन है वो भी सेम है, खाली एक लॉजिक आपको अलग लिखना है। देखिए टेबल भी सेम है जैसे मोनोपोली में हमने लिया था, पर मोनोपोली में मैंने आपको ये समझाया था कि there is one special feature of monopoly, that is monopolist can determine either price or quantity, right। मतलब both the things simultaneously he can't determine, he doesn't have that much power because the ultimate king is consumer। अगर वो ये चाहे कि मैं अपने प्राइस पे मेरा टारगेट सेल है तो वही बेचूंगा, तो
तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इफ़ यू चार्ज हाई प्राइस, राइट, पीपल विल रिड्यूस कंजम्पशन, राइट. तो मोनोपोली में इतना पावरफुल होते हुए भी, क्योंकि वो अकेला है, पूरा मार्केट उसके पास है, क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर फिर भी उसकी लिमिटेशन है कि अगर वो ये करना चाहे कि बहुत हाई प्राइस और टारगेट सेल बड़ा ऊंचा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो मोनोपोली है, राइट, वो ये चाहे कि आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक यूनिट, राइट, with 10 times high price and my target sale is per day 100 my target sale is 1 lakh units every day. तो ये नहीं हो सकता. लोगों को ये लगे कि ये यूनिट बहुत महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, तो लोग कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर देंगे, कंजम्पशन कम करना शुरू कर देंगे, राइट. तो वहाँ रीज़न ये था कि टू सेल मोर इन मोनोपोली वन हैज़ टू रिड्यूस प्राइस. यहाँ भी सिचुएशन ये है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, राइट. देर आर टू मच सेलर्स हु आर सेलिंग close substitute products, right. So to remain in the market, every entrepreneur has to sell more, has to capture more market, and to remain in the market, to attract people towards their product, one has to sell at a reasonable price. इसलिए यहाँ भी सेल ज़्यादा करने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा, पर रीज़न अलग है दोनों मार्केट में. मोनोपोली में प्राइस कम करने के लिए रीज़न अलग है, यहाँ प्राइस कम करने के लिए रीज़न अलग है, राइट. क्योंकि इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन फर्म कैन गेट हाईएस्ट प्रॉफिट ईदर बाय रिड्यूसिंग प्राइस और इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग और डूइंग एनी अनएथिकल प्रैक्टिस, राइट. तो सब में रिस्क है. अनएथिकल प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे टू गेट मोर प्रॉफिट, तो उसकी इमेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट. धीरे धीरे उसकी इमेज मार्केट में ख़त्म हो जाएगी, तो उसका एग्जिस्टेंस भी विल बी इन अ ट्रबल, इन अ रिस्क. तो वो नहीं कर सकता. अगर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ज़्यादा करने जाए तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, और लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट विथ कट टू कट कॉम्पिटिशन, राइट. तो अगर with more advertising, if he will be not in a position to sell at a reasonable price, then he will be thrown out from the market. तो वो भी एक रिस्क है, राइट. तो हर स्ट्रेटजी में एक रिस्क है, क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, राइट, टू मेनी राइवल्स है. तो इन सारी सिचुएशन में अगर उसको सेल ज़्यादा करना है तो उसको कम प्राइस करनी पड़ेगी, राइट. तो आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट, क्योंकि मैटर दोनों में सेम टू सेम है, पर एक्सप्लेनेशन अलग है, रीज़न अलग है. मोनोपोली में भी ऐसा ही टेबल था, ऐसा ही डायग्राम था, यहाँ भी ऐसे ही टेबल है, ऐसा ही डायग्राम है, पर एक्सप्लेनेशन अलग है. मोनोपोली में एक्सप्लेनेशन कुछ और था, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कुछ और है, राइट. तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. तो ये टेबल आपको दिखाता है कि इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बिकॉज कट थ्रोट कंपटीशन इज़ देयर, क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर देयर, एंड degree of competition is very high, right. And every company wants to remain in the market for longer period, right. That's why they have to sell more, and to sell more they have to reduce market price. So whenever price leads to diminish, right, if there is a tendency towards downward fall of price, then automatically AR and MR will diminish, because AR and MR both depends on market price. That's why see here AR and MR both are going down, बराबर. वही मोनोपोली की तरह देखिए, दोनों डाउनवर्ड है, पर कंपेयर टू AR MR reduces rapidly, right. That's why here in the diagram we can explain that AR line and MR line both are downward sloping, but compared to AR, MR line is inside of AR, right, showing that because price is going down, both revenues are diminishing. That's why the curve is downward sloping,
and because MR is reducing faster than AR, that's why here in the diagram MR line is inside of AR line, right? This is what relationship between AR and MR. I hope everything is clear. मैंने बहुत जल्दी ये एक्चुअली 2 क्वेश्चन है 10-10 मार्क के, पर क्योंकि सारा का सारा ज़्यादातर रिपीटेशन है, खाली जो नई चीज़ थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी, बाकी सारी चीज़ें जो है वो रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ मैं ये पोर्शन ख़त्म करती हूँ. इन अ नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम राइट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अभी शॉर्ट रन आपको पता है, इक्विलिब्रियम पता है, फॉर्म पता है, राइट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है वो भी पता है, AR MR लाइन कैसा होता है वो पता है, AC और MC कैसा है वो भी पता है. तो जो भी डायग्राम है वो एक्चुअली मोनोपोली वाली तीनों सिमिलर डायग्राम है, ओनली एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट. ओके, so in our next lecture we'll finish off our short run and long run equilibrium and the chapter itself, right? So we'll meet again in the next session. Till then, bye bye, have a nice day.